Hello students, so today we will start the next topic of the chapter and the name of the topic is transcription. So what is transcription? Transcription is a process in which the information of DNA strand is copied into a molecule of RNA, molecule of messenger RNA or we can say mRNA. So DNA की जब information copy होती है और copy होकर किस में convert हो रही है, mRNA के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मैसेंजर mRNA में कन्वर्ट होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. So we will start the topic transcription in a prokaryotic cells. So what are prokaryotic cells? Prokaryotic cells are a very primitive kind of cell which lack of cell organelles and the nuclei or genetic material is simply scattered in the cytoplasm. So in the when the transcription starts in a prokaryotic cell, it always need a DNA double helical structure. तो prokaryotic cells में transcription के लिए DNA का double helical structure होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So from that region जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. सो सबसे पहले द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैज टू बी अनवाइंड. सबसे पहले क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड होना पड़ेगा. जो एच बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होते हैं, ठीक है. और उसके बाद जहां से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है दैट बबल इट विल मेक अ बबल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल. तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिख रहा है इस डायग्राम में, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल. एंड फ्रॉम दैट द रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट, दैट रीजन जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है दैट इज नोन एज द एक्टिव साइट. और इन दिस होल प्रोसेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, द मेन एंजाइम विच इज यूज्ड इज आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज है मेन एंजाइम होता है जो कैटेलाइज करता है इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को. So that particular region is known as the transcription bubble. और यहाँ पर क्या हो रहा है, you can see the two strands of DNA. This is the coding strand और this strand is known as the template strand. तो template strand के से जो template strand होता है ना, उसका opposite में RNA strand form होता है which is very similar or you can say the identical to the coding strand. ये जो RNA का strand synthesize हो रहा है ये कैसा है, coding strand के identical होता है. The difference is only that in the place of thymine uracil is present. Thymine की जगह पर सिर्फ uracil present है, otherwise the strands are identical. So this strand is known as the template strand. और उस template strand के opposite यानी यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है that is the nascent RNA, जो newly strand mRNA का form हो रहा है that is called the nascent RNA. और डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है. सो स्टूडेंट लुक एट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज अ प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर. दिस रीजन इज नोन एज द प्रमोटर रीजन. The 5' region where the promoter sequences starts is known as the upstream sequence, and the 3' region where the process is stop is known or terminate. This region is known as downstream sequence. So promoter is the region is that particular region where the initiation of a transcription start. Promoter region वो वाला region है जहाँ से transcription का process जो है, initiation जो है वो start होगा. That is why it is known as the transcription initiation site. Transcription initiation site. And this is the region where the transcription stops, and this region is known as transcription terminator or termination site. Here the RNA polymerase enzyme is meet. यहाँ पर RNA polymerase enzyme जो है वो सबसे पहले आता है कहाँ पर, जहाँ से initiation की process start होगी. And this particular region is known as the coding region, जहाँ पर
आरएनए की कोडिंग होगी, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड से जो कॉपी बनेगी, आरएनए एमआरएनए की कॉपी बनेगी, वो इस पर्टिकुलर रीजन में बनती है एंड दिस इज नोन एज द टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेशन रीजन, जहां पर इनिशिएशन की प्रोसेस, जैसे ही जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो स्टॉप हो जाएगी टर्मिनेटर रीजन में. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है ये. सो प्रोकैरियोटिक सेल यूज द सेम आरएनए पॉलीमरेज टू initiate all their genes. In the initiation process, this is the sequence of a DNA strand जहाँ पर initiation की process start होगी. So the RNA polymerase enzyme is made up of from the 5 subunits and the name of the subunits are alpha, alpha, beta, beta dash and sigma. So all these 5 subunits combinedly called the holoenzymes. So the polymerase is made up of from these 5 subunits in which the 2 subunits are identical. तो ये जो दो अल्फा अल्फा subunits हैं they are identical. Beta, beta dash and sigma, all these 5 subunits make the holoenzyme. All the 5 subunits combinedly called the holoenzyme. So these 5 peptide subunits in which the 2 is the alpha subunit which actually assemble the polymerase on the DNA. तो alpha subunits का काम क्या होता है, वो polymerase को assemble करती हैं कहाँ पर, DNA में, क्योंकि initiation की process start होनी है. The beta subunits bind ribonucleotide triphosphate to the नेसेंट और न्यूबॉर्न एमआरएनए. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को बाइंड करने का काम करता है कैसे, एमआरएनए से. थर्ड इज बीटा डैश सब यूनिट, इट बाइंड्स डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो क्या कर रही है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को बाइंड करने का काम कर रही है. और द लास्ट सब यूनिट इज नोन एज द सिग्मा सब यूनिट. दिस सिग्मा सब यूनिट इज एक्चुअली इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो इस सिग्मा सब यूनिट का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करना. तो ये 5 सब यूनिट्स हैं और इसका काम सिर्फ प्रोसेस को इनिशिएट करने का ही होता है. नाउ लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट. दिस इज द साइट वेयर द फर्स्ट 5 प्राइम mRNA न्यूक्लियोटाइड इज सिंथेसाइज्ड एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. ठीक है, द +1 रीजन और इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जहां पर 5 प्राइम mRNA न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट होती है. ये आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो जीन प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है. द +1 साइट इज द लोकेशन, इज द प्लेस वेयर द synthesis of mRNA is starts. Now this is the region, this is the upstream sequence, -10 region and -35 region. These are the upstream consensus sequences where the initiation start, जहाँ पर क्या होता है कि initiation या transcription की process चल रही है. These -35 and -10 regions are bind with the sigma bond. ये किसके साथ bind हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ बाइंड हो रहे हैं. दिस इज अ प्रमोटर सीक्वेंस, ये प्रमोटर सीक्वेंस है. ठीक है, ये दोनों रीजन जो है वो सिग्मा फैक्टर के साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ बाइंड है. और यहाँ पर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर डीएनए अनवाइंड होगा और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड आकर अटैच होते जाएंगे, विच हेल्प्स टू मेक द न्यू एमआरएनए मॉलिक्यूल. सो स्टूडेंट, transcription elongation process starts with the release of sigma subunit. sigma subunit के रिलीज होते ही ट्रांसक्रिप्शन की elongation की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. RNA polymerase enzyme obviously plays an active role in the process and जो RNA polymerase enzyme है, with the help of RNA polymerase enzyme जो mRNA molecule की synthesis है वो शुरू हो जाती है in the direction of 5 prime to 3 prime. टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट में mRNA molecule synthesize हो रहा है. This is the direction of the synthesis of
mRNA molecule. So the continuously DNA का strand है वो unwind होता जाएगा with the head of core enzyme and फिर से rewind होता जाएगा. There is one more which is very important thing here, that RNA molecule and DNA molecule here in this process they are unstable in nature. कैसे हैं ये? Unstable nature के हैं. So RNA polymerase enzyme is also playing a very important part in stability of the DNA and RNA molecule. तो RNA polymerase enzyme as a linker, एक लिंकर की तरह काम करेगा, जो क्या कर रहा है, DNA मॉलिक्यूल को और mRNA मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो प्री मैच्योरली इंटरप्ट ना हो सके. अदरवाइज अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल और एमआरएनए मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेंगे तो आरएनए की इलोंगेशन की प्रोसेस कैसी हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी प्री मैच्योरली. पूरी प्रोसेस होने के पहले ही जो इंटरप्शन हो जाएगा उसको रोकने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एज अ लिंकर वर्क करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट, द लास्ट स्टेप इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज द terminator step, termination step. In the termination step, because the RNA polymerase enzyme continuously doing the elongation process, there is something which has to be instructed the polymerase enzyme that the process has to be stopped here. मतलब RNA polymerase enzyme को कोई ऐसा सिग्नल प्रोवाइड होना चाहिए जिससे polymerase enzyme क्या करे, elongation की प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर दे और mRNA मॉलिक्यूल को रिलीज कर दे. So there are two type of terminating signals. The first termination signal is known as protein based termination signal, that is rho dependent, and second is a RNA based signals, that is rho independent. तो पहले हम protein based signal को देखते हैं. This protein based signal और rho dependent signals are controlled by रो प्रोटीन. तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, रो प्रोटीन के थ्रू होते हैं. दिस रो प्रोटीन और द रो डिपेंडेंट इज कोलाइड विद द पॉलीमरेज एंजाइम एंड रिलीजेस द mRNA मॉलिक्यूल, और इस तरीके से mRNA मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया. यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो गई, एंड हो गई. सेकेंड इज रो इंडिपेंडेंट सिग्नल. द रो इंडिपेंडेंट सिग्नल्स, it is rich in CG molecule, it is very rich in CG molecule, and this row independent signal is controlled by the specific sequence which is present in the DNA template strand. तो DNA template strand में ही एक specific sequence present होता है जो row independent को कंट्रोल करने का काम करता है, विच इज वेरी रिच इन. ये रो इंडिपेंडेंट कैसा होता है, सीजी मॉलिक्यूल में रिच होता है, वाइल रो डिपेंडेंट जो होता है वो सी मॉलिक्यूल का रिच होता है बट जी मॉलिक्यूल में पुअर होता है. सो दिस रो इंडिपेंडेंट सिग्नल, द mRNA मॉलिक्यूल्स इज फोल्डिंग. RNA मॉलिक्यूल क्या करता है, mRNA मॉलिक्यूल एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीजी न्यूक्लियोटाइड्स एंड बाइंड टुगेदर. तो ये दोनों कैसे होते हैं, mRNA मॉलिक्यूल ने हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सीजी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं और फिर mRNA मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. वाइल इन रो डिपेंडेंट हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर सिंथेसाइज नहीं होता है. सो स्टूडेंट, द टर्मिनेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कंप्लीटेड. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.